Good morning, students. Now, today we will start our next chapter, that is a chapter first, and its name is solid state. Okay, solid state is a form of matter in which all the particles are very close with each other due to very high intermolecular forces. That means in a solid state there is a very high intermolecular forces between the atoms, molecules and other particles. That means very less intermolecular space is between the atoms. Now, there are two types of solids, crystalline and amorphous. On the basis of geometrical pattern, on the basis of atomic structure, there are two types of solids. First one is crystalline solid and second one is amorphous solid. In this chapter, you will read completely about crystalline solid, not about amorphous solid. Okay, so amorphous solid is only present in this point. Now, what are the differences between crystalline solid and amorphous solid? The first difference, they have definite and regular geometry. They have irregular geometry. That means in a crystalline solids, okay, these are the atoms which are present in crystalline solid and present in a definite and regular geometry. But in amorphous solids, okay, the atoms, the atomic arrangement in is a such type in which the atoms are not regularly arranged, they are irregularly arranged. Now, what are the examples? क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उनके बेसिस पर आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हो. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वो सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स, मे बी कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके, lead sulfate, which were given in your lab. But in amorphous solid, okay, mainly three types of examples are there. These are glass, rubber and plastic. Okay, so glass, rubber and plastic are considered as a amorphous solid because they do not have any type of crystalline arrangement. Clear? Now, they have sharp melting point, they have indefinite melting point. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. जैसे मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है, ये 390 केल्विन पर मेल्ट होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये 390 पे ही मेल्ट होगा, 389 पर भी मेल्ट नहीं होगा. लेकिन आपने किसी रबर को ऊपर धूप में रख दिया तो वो उस रबर उस सरफेस पे चिपक जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं है फिक्स. ठीक है, थोड़ा सा अगर उसने हमने उसको हीट किया तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. They are true solids. The another name of crystalline solids are true solid, and these are pseudo solids. Pseudo solids. These are pseudo solids. Okay, they are also known as super cooled liquid because at a high temperature they can flow. So they are called super cooled liquids, and they are true solids. True solids are crystalline solids. Okay, those which have crystals in the structure. They are anisotropic in nature. They show isotropic in nature. What is anisotropic and isotropic? Okay, इन दोनों मैटर को मैं आपको एग्जांपल्स के बाद में डिस्कस करता हूँ. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स: Na2SO4, copper sulfate, CuSO4, calcium sulfate, lead sulfate, glass, rubber and plastic. These are the amorphous solid and these are crystalline solid. Now, what is the difference between an anisotropy and isotropic topic? The physical properties like refractive index, electrical resistance, heat conductivity, mechanical strength, etc. have different value in different directions. Okay, so अगर ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर एटॉमिक अरेंजमेंट के अंदर किसी भी सॉलिड में अगर चेंज होती है बार बार डिफरेंट डायरेक्शंस में, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, तो दैट टॉपिक इज़ नोन एज, that concept is known as anisotropic, and this anisotropic is present in a crystalline solid. But in amorphous solid, opposite to this physical properties of amorphous solids, same value in all direction,
पूरी की पूरी, जैसे रबर की हम बात करें तो रबर के अंदर आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मिलती है, उसके अंदर जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो एक एमॉर्फस सॉलिड है, उसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नाउ एमॉर्फस सॉलिड जो हमको इस टॉपिक को यहीं हम खत्म कर देंगे, ये हमें आगे नहीं पढ़ना है। बट ये जो टॉपिक है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हमको आगे स्टार्ट करना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने पीडीएफ भेजा है ये पूरे चैप्टर का पीडीएफ होगा, लेकिन अभी मैं आपको जहाँ तक पढ़ाऊँगा आपको वहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट इसी पीडीएफ से आपको आगे का टॉपिक पढ़ना है, लेकिन एक बार मैं पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगेन क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना। एमॉर्फस तो आपको पढ़ना नहीं है। सो व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फिर से 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसमें से फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनके ये मिलके बने होते हैं वो कौन होते हैं? इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इसमें कौन कौन आते हैं देखो। फर्स्ट इसके अंदर है मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, आर्गन। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो गैसेज हैं। हाँ, ये गैसेज हैं, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दीज आर दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S, एंड वाटर विच इज़ एन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। और वाटर की भी कौन सी फॉर्म? आइस फॉर्म। ठीक है, अब आता है आपके आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल कन्फर्म है कि क्या होंगे? आयन होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आयोनिक सॉलिड जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। कब? जब वो सॉलिड फॉर्म में। बट इन आयोनिक सॉलिड्स को जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की प्रेजेंस में। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आयोनिक सॉलिड्स। ऑल सॉल्ट इसके अंदर जितने भी वो सब आ जाएंगे। तीसरा आता है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स होंगे, है ना। जो एटम होंगे वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे? मेटल होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटल, आयरन, गोल्ड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सारे इसके एग्जांपल होंगे। फोर्थ टाइप का जो सॉलिड है वो है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा था? मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड मेटेलिक सॉलिड, फिर आयोनिक सॉलिड, फिर अब आता है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जितने भी इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? एटम्स हैं। दे कैन मे बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, जैसे अगर जितने भी कंपाउंड है कोवेलेंट सॉलिड्स के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ग्रेफाइट जो है कंपाउंड ग्रेफाइट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या देखो। एक आपके इसके अंदर था डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC को बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। दीज आर दी कोवेलेंट सॉलिड, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपके आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। देखो अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अब हम सॉलिड को अंदर से देखेंगे कि वास्तव में उसके अंदर कौन कौन से एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने सॉलिड को बाहर से देखा है। जैसे अगर आपके पास में कोई एक शुगर का क्रिस्टल है ना, शुगर, नमक का दाना है आपके पास में, एक बहुत छोटा क्रिस्टल है नमक का, या शुगर का आपके पास बहुत छोटा एक क्रिस्टल है, उसको हम बाहर से देखते हैं, अंदर से कैसा दिखता है वो। ठीक है ना, व्हाट इज़ द एटॉमिक अरेंजमेंट, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इनसाइड द सॉलिड। अब वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके, और इस टॉपिक का क्या नेम है? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है ना, देखो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ से बोलता हूँ मैं, अ क्रिस्टल लैटिस इज़ अ 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ एटम्स अरेंजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। हो सकता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब आगे की बात देखो आप। अब मैं बता रहा हूँ यूनिट सेल की डेफिनेशन। अ यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टल लैटिस। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। अ यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टल लैटिस। देखो अब मैं आपको दोनों को समझाता हूँ, क्रिस्टल लैटिस को भी समझाता हूँ और यूनिट सेल को भी समझाता हूँ। अगर मान लो आपके पास में एक शुगर का क्रिस्टल है,
ठीक है। शुगर के क्रिस्टल की कुछ एटॉमिक अरेंजमेंट इस तरीके का होता है शुगर के अंदर, ऐसा होता है शुगर का क्रिस्टल। थोड़ा बहुत अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हेक्सागोनल दिखता है हमको। देखो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ जिससे ये आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर ये पूरा एक शुगर का क्रिस्टल है एक, मान लो। अभी ये पूरा क्या है, एक क्रिस्टल है शुगर का। इस शुगर के क्रिस्टल में बहुत सारी मिलियंस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारी यूनिट सेल से मिलके ये क्या बना है, शुगर का एक क्रिस्टल बना हुआ है। इस पूरे शुगर के क्रिस्टल को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या नाम है इसका, क्रिस्टल लैटिस। अब इस शुगर के क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी यूनिट सेल्स होती हैं, इतनी इतनी सी बस, ये तो मैं बहुत बड़ी बना रहा हूँ। ऐसी मिलियंस ऑफ यूनिट सेल होती हैं और जिनसे मिलके पूरा शुगर का क्रिस्टल बना हुआ रहता है। अब ये यूनिट सेल जो होती है वो उनको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसा शुगर का क्रिस्टल होता है वैसी की वैसी यूनिट सेल होती है, यानी कि यूनिट सेल की जो ज्योमेट्री है वो बहुत सारी यूनिट सेल्स आपस में कंबाइंड होकर एक क्रिस्टल बनाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है मेरे पास में। इस बॉक्स के अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं ऐसे, इस पूरे बॉक्स के अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं। तो ये पूरा बॉक्स तो क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस। पूरा एक बॉक्स तो क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। और इस बॉक्स के अंदर जो सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर है, मान लो ये वाली सबसे छोटी स्ट्रक्चर है इस बॉक्स के अंदर, ये वाली। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, जिसकी बार बार रिपीटिंग हो रही है। आई बात आपको समझ में। अ यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टल लैटिस। ये होती है यूनिट सेल, जिससे वो पूरा क्रिस्टल बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो जो सबसे छोटी यूनिट सेल होती है ना, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हमने यूनिट सेल नाम दिया है। वो कैसी क्या होती है वो देखो आप, ये एक यूनिट सेल है। मैंने एक क्यूब बना रखा है इसके अंदर। इस क्यूब में अगर हम देखें तो इस क्यूब के अंदर ये एक क्यूब बना रखा है, और एक ये इधर से मैंने इस तरीके से बनाया और इसको यहाँ से जॉइन कर दिया। ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के अंदर ये जो है, ये इसकी एज लेंथ है ए, ये बी है और ये सी है, मतलब एज की लेंथ है ना। ए के सामने वाले एंगल को बोलते हैं हम, ए के जो सामने वाला एंगल है उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा एंगल। ये रहा अल्फ़ा एंगल। बी के सामने वाले एंगल को बीटा एंगल, सी के सामने वाले एंगल को गामा एंगल। तो इसमें ये बॉन्ड, ये जो यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं, ए बी सी एजेस लेंथ, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स, एजेस एंगल्स। ठीक है, ये इनके पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर्स के बेसिस पर यूनिट सेल जो हैं वो 3 या 4 टाइप्स की होती हैं, उनको बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो हियर A, B and C are axial distance and alpha, beta and gamma are the axial angles. Types of unit cells. कितने टाइप्स की यूनिट सेल हो सकती हैं, देखो फर्स्ट जो यूनिट सेल है उसको बोलते हैं प्रिमेटिव या सिंपल यूनिट सेल। इसका यही नाम है, प्रिमेटिव या सिंपल यूनिट सेल। ये एक क्यूब बना हुआ है, ये एक यूनिट सेल है। ऐसी लाखों यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल बनाती है। हमने वो सबसे छोटी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं अपन, और उसका सबसे पहला एग्जांपल है सिंपल यूनिट सेल। इन दिस यूनिट सेल 8 एटम्स आर प्रेजेंटेड 8 कॉर्नर्स। किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। अगर उन 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट हों, इस तरीके से 8 एटम उन 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सेकेंड यूनिट सेल देखो आप, इसका नाम है BCC, जिसकी फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम एट द सेंटर। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो 8 एटम है ये 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और 8th। लेकिन इस पूरे यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में, जैसे अगर आपके जिस कमरे में आप बैठे हो भी, उस पूरे कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा एटम प्रेजेंट है, जो चारों तरफ से दीवारों को टच कर रहा है, दीवार के बाहर नहीं निकल रहा है, केवल दीवारों को टच कर रहा है। तो वो बीच में प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। फिर आता है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको अभी जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको पूरा बना दूंगा, उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये समझ में आपको कब आएगा वो देखिए आप। देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फेस सेंटर के अंदर 8 एटम्स आर प्रेजेंट 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम्स आर प्रेजेंट एट 6 फेजेस। किसी भी क्यूब की 6 फेज होती हैं, ठीक है, और हर फेज पे एक एटम प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे,
है ना। अब देखो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो फेस पे प्रेजेंट है ना वो मैं बना रहा हूँ। पहले ही बताता हूँ उसकी कितनी 6 फेसेस कैसे हैं। देखो एक फर्स्ट फेस तो ये आपको नजर आ रही है, फर्स्ट तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड फेज इसकी ये रही, ठीक है। थर्ड फेस इसकी ये रही, ठीक है ना। फोर्थ ये रही, फिफ्थ ये वाली है, और सिक्स्थ ये वाली फेज है। हर फेज पे एक एटम प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। देखो एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड ऊपर वाली पे, फिर साइड वाली पे थर्ड, एक ये फोर्थ, 4 एटम तो यहाँ प्रेजेंट हो गए फेजेस पर। अब एक जो आगे वाली यूनिट सेल आ रही है, आगे वाली फेज़ है, उस आगे वाली फेज़ पे मैंने एक यूनिट एक एटम प्रेजेंट कर दिया ये वाला, और एक पीछे वाली फेज़ पे ये एटम प्रेजेंट कर दिया। अब देखो बनने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक एक हटाऊंगा फिर आप देखना उसको। अभी मैंने सबसे पीछे वाली फेज़ से एक एटम हटा रहा हूँ, वो हट गया, दो एक साथ हट गए, क्या करें। ये देखो ये आगे वाली फेस से हटा। अब ये जो बाकी की चारों फेसेस वहाँ से एक एटम हटाता हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके अंदर 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और बाकी के नहीं होते हैं। तो फर्स्ट आपने पढ़ी सिंपल वाली, फर्स्ट आपने कौन सी पढ़ी, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, 8 एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं बस। सेकंड बीसीसी पढ़ी आपने, बीसीसी के अंदर 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स में और एक सेंटर में, बॉडी सेंटर के अंदर। तीसरी आपने पढ़ी फेस सेंटर, 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स पर हैं और 6 एटम्स 6 फेजेस पर हैं, तो उसको हम बोलते हैं FCC। ओके, ये होती हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देखिए आफ्टर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी और एफसीसी, अब हमें ये पता लगाना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर जैसे ये क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब में मैक्सिमम कितने एटम्स आ सकते हैं, ओके, बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। एक जो एटम क्यूब बना हुआ है इसके अंदर एटम्स कितने आ सकते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल। देखो एग्जाम में इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। कैसे निकालेंगे देखो, सपोज सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का निकालना है आपको। तो सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है ये वाला, ये सिंपल यूनिट सेल की स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, हमें ये निकालना है कि सिंपल यूनिट सेल के एटम, सिंपल यूनिट सेल का जो ये क्यूब बना हुआ है इसमें कितने एटम्स अंदर एंटर कर सकते हैं, कितने एटम्स अंदर आ सकते हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये देखो आपकी इसके अंदर 8 एटम्स जो हैं वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। सपोज मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको बना दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। ये 8 एटम्स प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पे। अब हम किसी एक एटम को हम सिलेक्ट करते हैं, वो मैंने ले लिया ये वाला। देखो इस यूनिट सेल से क्रिस्टल कब बनता है, जब बहुत सारी यूनिट सेल आपस में टच होती हैं। इस वाली यूनिट सेल के इधर भी एक यूनिट सेल है, इधर भी एक यूनिट सेल है, ऊपर भी एक यूनिट सेल है, चारों तरफ इसके यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो एटम यहाँ प्रेजेंट है, ये वाला जो एटम यहाँ प्रेजेंट है, ये कितनी यूनिट सेल्स को टच कर रहा है, कितनी यूनिट सेल के अंदर एंटर कर रहा है ये वाला एटम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, इस ये वाला एटम। जैसे अगर आपके पास में 8 माचिस की डिब्बियाँ हैं, है ना, मैच बॉक्स हैं, उन मैच बॉक्स में से किसी भी एक मैच बॉक्स पर आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी इंक लगा दी। अब आपने 8 मैच बॉक्स को एक साथ अटैच किया, वो इंक कितनी यूनिट सेल्स को, कितनी मैच बॉक्स को टच करती है, वो पता लगाना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो एटम है ये 8 यूनिट सेल को टच करेगा, आसपास की सारी 8 यूनिट सेल्स को ये टच करेगा, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। आप ऐसा मैच बॉक्स से देख सकते हो करके। अब देखो अगर ये एटम 8 यूनिट सेल को टच कर रहा है, इसका मतलब ये एटम कॉर्नर पे है, तो ये 8 यूनिट सेल के अंदर जा रहा है ना। और इसकी खुद की यूनिट सेल में इसका 1/8 पार्ट ही आ रहा है बस। तो 1/8 पार्ट आठों के अंदर 1/8 जा रहा है, तो इसकी खुद की यूनिट सेल में कितना आया, 1/8 पार्ट आया, है ना। इसका मतलब ये टोटल कितने एटम से 8 है, और हर एक का 1/8 पार्ट इस खुद की यूनिट सेल में आ रहा है, तो कितना हो गया 1। इसका मतलब सिंपल यूनिट सेल के अंदर मैक्सिमम 1 एटम एंटर कर सकता है बाय वॉल्यूम, ठीक है। इतना सा आपको निकालना होता है बस, तो उसमें आपको 1 मार्क मिलते हैं। अब देखते हैं हम बीसीसी के अंदर। देखो बीसीसी का मतलब क्या हुआ, बॉडी सेंटर्ड। 8 एटम्स तो कॉर्नर पे ही है, तो उसका तो 1 ही आएगा आंसर। जो 8 एटम्स कॉर्नर पे है ना, उनका आंसर तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 8 × 1/8। लेकिन एक जो एटम सेंटर पे है वो यूनिट सेल से बाहर नहीं निकल रहा है,
ठीक है, यूनिट सेल के अंदर ही है वो, तो वो पूरा काउंट होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एटम 1। अगर वो भी बाहर निकल रहा होता तो उसको हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये तो पूरा अंदर का अंदर ही है, तो उसको बोलेंगे 1। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2। सो इन BCC द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज़ 2। अब हम बात करते हैं FCC की। FCC के अंदर क्या हो रहा है, देखो 8 एटम्स तो 8 कॉर्नर्स पे हैं, तो उनका तो आंसर वही आएगा इसमें भी, 8 × 1/8, 1/8 × 8 तो होगा 1 आंसर। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपको समझना है, 6 एटम्स जो हैं वो 6 फेजेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो ये वाली जो एक फेज़ है, इस फेज़ पे एक एटम प्रेजेंट है, और वो कौन सा एटम है, ये वाला एटम प्रेजेंट है इस फेज़ के ऊपर। अब इधर जो एक यूनिट सेल प्रेजेंट है इधर, उसका इसकी खुद की यूनिट सेल में ये आधा जाएगा और इस पास वाली यूनिट सेल में ये आधा जाएगा। मान लो आपके कमरे की एक दीवार है, वहाँ उस दीवार पे एक बड़ा एटम प्रेजेंट है, तो वो आधा तो आपके कमरे में आएगा, आधा पास वाले कमरे में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हाफ में डिवाइड हो रहा है। वो कितने में डिवाइड हो रहा है, हाफ के अंदर। तो जितने छः जो फेजेज़ हैं, उन छः फेजेज़ के ऊपर जो 6 एटम लगे हुए हैं, वो आधे आधे अपनी यूनिट सेल में आ रहे हैं और आधे आधे बाहर वाली यूनिट सेल में जा रहे हैं। तो ऐसे 6 एटम्स हैं, उनको हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3, ये वाला। ठीक है, तो फेज पर प्रेजेंट है 6 एटम और अपनी अपनी यूनिट सेल में वो हाफ हाफ आ रहे हैं, तो हो जाएगा आंसर 3। तो टोटल इसका आंसर आता है 4। FCC के अंदर पर यूनिट सेल 4 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल के अंदर आंसर आया था 1, फिर आया था आपके BCC के अंदर 2, और इसके अंदर कितना आता है 4। सो एक नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर कभी कभी बनता है, वो आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके। आफ्टर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ओके। यूनिट सेल की मैंने जब आपसे बात की थी, तो यूनिट सेल के अंदर हमने क्या देखी थी, दो चीज़ देखी थी। एक तो एक्सियल डिस्टेंस की बात की थी हमने, जिसके अंदर A, B और C आ रहा था, A, B और C, और एक आ रहे थे आपके एक्सियल एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल बॉन्ड्स, देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके सबसे ऊपर आपको यहाँ लिखना है उस टॉपिक का नाम, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है ना, 7, इस टॉपिक को लिखना है आपको 7 नोट्स के अंदर, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल बॉन्ड्स के बेसिस पर हम 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है आपके क्यूबिक, सबसे फर्स्ट जो है उसका नाम है क्यूबिक। ठीक है ना, क्यूबिक में एक्सियल डिस्टेंस जो है वो होती है आपके अल्फा A = B = C, और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो ऐसा अगर होता है तो बनता है उससे क्यूब। इसके एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इसके एग्जांपल है, मतलब इन क्रिस्टल्स के अंदर क्यूबिक अरेंजमेंट मिलता है। ठीक है, सेकंड है टेट्राहेड्रल। पहले मैं आपको क्यूबिक की स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो ये आपके क्यूब बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके क्यूबिक की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होता है। सेकंड आपके आता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर A = B बट नॉट इक्वल टू C आ रहा है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ये तो वो 90 डिग्री आ रहे हैं, लेकिन B नॉट इक्वल टू C। टिन क्लोराइड एंड टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड टिन ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल है। ये देखो आप टेट्राहेड्रल की जो स्ट्रक्चर है वो ये आ रही है, जिसके अंदर A और B तो इक्वल है, बट C की लेंथ ज़्यादा जा रही है और बॉन्ड एंगल तीनों 90 डिग्री के आएंगे। फिर आपके आता है थर्ड नंबर पे ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक टाइप का जो क्रिस्टल होता है, इसके अंदर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक के स्ट्रक्चर। ये आपके सामने आ रही है ऑर्थोरोम्बिक के स्ट्रक्चर। इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, लेकिन एक्सियल डिस्टेंस जो तीनों की सेम नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल इनमें तीनों में 90 डिग्री का ही बन रहा है। ओके, फिर आता है आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल में देखें A = B नॉट इक्वल टू C, इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री का आ रहा है इसके अंदर, जैसे मैग्नीशियम का और जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं। ये है आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये वाली। ठीक है, तो इसमें हेक्सागोनल बन रहा है, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के आ रहे हैं, लेकिन जो गामा एंगल है वो 120 डिग्री का आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट नंबर पर आता है इसके अंदर ट्राइकोनल। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, ये होता है आपके ट्राइकोनल। ये आपके आ रहा है ट्राइकोनल। ठीक है, इसको मोनोक्लिनिक भी कहते हैं, ये वाला। अब आपके नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक, है ना। मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा = बीटा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और इसके अंदर ये वाला बॉन्ड एंगल आएगा। ठीक है ना, बीटा 90 डिग्री का होगा। इसका एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर होगा।
और ट्राइक्लिनिक के अंदर एल कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पोटेशियम डाइक्रोमेट और H3BO3 इसके एग्जाम्पल होंगे। ये रहा आपके ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इस तरीके से होते हैं आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ द एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल इन टेट्राहेड्रल इन क्यूबिक, किसी में भी पूछ लिया आपसे ऐसे, तो आपको एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल आपको बताने होंगे उस पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम के लिए। या फिर ये आ गया, मान लो कि अगर एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल दे रखा है तो ये पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का क्रिस्टल है। इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बनते हैं विच आर रिलेटेड टू 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके, नाउ our next topic is closed packed structure in solid. In the crystal formation of solids, the constituent particles are very closed with each other. ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि सॉलिड के अंदर जितने भी constituent particles है वो बहुत पास पास में होते हैं। To get maximum packing state for a crystal arrangement, such packing arrangement is called close packing. ठीक है ना, बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एटम्स का जब अरेंजमेंट होता है क्लोज्ड पैक, तो ये एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो इन एटम्स के बीच में ये वाला जो गैप आ रहा है, ये वाला गैप जो आ रहा है एटम के बीच में, ये रहता ही रहता है, क्योंकि एटम की जो शेप होती है वो राउंड शेप होती है। तो हम 4 बॉल को आपस में टच करेंगे तो बीच में जो स्पेस आएगा ना, वो हम नहीं भर सकते, वो तो इनके अंदर बीच में रहेगी ही रहेगी, कितने भी क्लोज्ड पैक हो जाएंगे। अब इनकी जो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, फर्स्ट आती है इसके अंदर 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। हियर सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर अरेंज एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ रो। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट कि 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 होता है। वो कैसे होता है, देखो ये है 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। इसके अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो केवल एक ही रो में होता है। इस तरीके से एटम्स एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, 1 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया है वो कैसा आया है, आपको क्या करना है, इन सब में से किसी भी एक एटम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में वो एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है। जैसे मान लो मैंने ये वाला एटम सेलेक्ट कर लिया, ये वाला मैंने एटम सेलेक्ट किया। अब ये वाला जो एटम मैंने, ये कितने एटम्स को टच कर रहा है, वो एटम्स कौन कौन से हैं, वो एटम्स क्या हो जाएंगे आपके, ये 2 एटम को ये टच कर रहा है। एक तो इस वाले एटम को टच कर रहा है, सॉरी, एक तो इस वाले एटम को टच कर रहा है ये, और एक इधर वाले एटम को ये टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे हम एक ही रो के अंदर एक एटम कितने एटम्स को टच करेगा वही होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 आता है। ठीक है, अब आते हैं हम 2 डायमेंशन के अंदर। 2D स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट का नेम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नेम है फर्स्ट का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या लिखा हुआ है, द स्फीयर इन द एडजेसेंट रोज हैव अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अरेंजमेंट, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इसमें भी लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम प्रेजेंट होता है जस्ट ऊपर। तो इसके अंदर क्या है, देखो प्रेजेंट पूरी एक लाइन बनी हुई है इसके अंदर, उस लाइन में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम प्रेजेंट है। इसलिए इसमें जो लेयर्स बनती हैं वो किसकी बनती हैं, एक ही बनती हैं, ए लेयर वो की वही है। अब हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला, आपको क्या करना है, पूरे क्रिस्टल के अंदर से एक एटम को सेलेक्ट करते हुए वो जितने एटम्स को टच करता है वो तो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे हमने जिस एटम को सेलेक्ट किया वो मान लो ये वाला है। अब ये कितने एटम्स को टच कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, थर्ड इसको कर रहा है और फोर्थ इसको कर रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर मैं क्या करूँ, ये जितने भी एटम को टच कर रहा है उनके न्यूक्लियस को अगर मैं मिला दूँ तो क्या होगा, ये मैंने इनके न्यूक्लियस को मिला दिया तो हमारे सामने एक स्क्वायर बन रहा है। इसलिए सच टाइप ऑफ ये जो बनते हैं इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब 2 डायमेंशन के अंदर आता है नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, देखो ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर इज इन डिफरेंट लेयर दैट इज गिव्स द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। देखो इसमें क्या होगा,
एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दो एटम के बीच में एक तीसरा एटम आएगा इसके अंदर। ऊपर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो क्या हो रहा था, एक के ऊपर ही एक आ रहा था ऐसे। यहाँ क्या होगा, दो के बीच में एक आएगा। किस तरीके से आएगा देखो, मैं फिर से बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब इस दो के बीच में ये वाला आ गया ऐसे। इस तरीके से इसमें दो के बीच में एक एटम आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम किसी भी एक एटम को सेलेक्ट करते हैं, मान लो मैंने जो एटम सेलेक्ट किया वो ये वाला कर रखा है ना। ये एटम 6 एटम्स को टच कर रहा है, नेबरिंग एटम किसने इसके 6, इसलिए इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब उन नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस को अगर हम मिलाते हैं तो एक हेक्सागोनल बन रहा है। आपको वो हेक्सागोनल यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये हेक्सागोनल बन रहा है इसके अंदर। अगर हम उन नेबरिंग एटम्स को टच करें तो लाइन्स को न्यूक्लियस को मिलाएं तो हेक्सागोनल बनता है। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, सॉरी स्क्वायर 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 और हेक्सागोनल, दो प्रकार की क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है। स्क्वायर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब हम बात करते हैं वॉइड्स की। वॉइड्स का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपके पास में बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स को अगर आप अरेंज करो तो एटम्स को अरेंज करने के बाद में बीच में ये स्पेस रहती है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल गैप, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वॉइड्स। इनका दूसरा नाम क्या है, वॉइड्स भी है। इट इज़ दी सर्टेन होल्स विच आर फॉर्म्ड इन क्लोज्ड पैकिंग ऑफ स्फीयर विच आर नॉन एज इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, ये होते हैं आपके इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अब ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स जो है, एटम्स के बीच में गैप तो रहेगी रहेगी क्योंकि एटम की शेप गोल होती है। अब वो जो राउंड शेप के एटम है उनके बीच में जो गैप रहती है उनकी भी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के होते हैं वॉइड्स। फर्स्ट का क्या नेम है, टेट्राहेड्रल, सेकंड का नेम है ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था ना वो तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बीच की गैप की, जो एटम्स के बीच में गैप बनता है ना उसकी, वो होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो ये दोनों कब कब बनते हैं। फर्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड, when the sphere of second layer is so placed that it's covered trigonally hole made by the first layer and 4 spheres are in the contact with each other। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ा उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे अगर आपके पास में, आपको इस डायग्राम को देखना है और मैं बना रहा हूँ उसको, उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपके पास में एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके का है, फर्स्ट सेकंड और एक आपके पास में इस तरीके के 3 एटम्स प्रेजेंट है, 3 बॉल प्रेजेंट है। आपने क्या किया, एक चौथी बॉल लेके इन तीनों के बीच में ऊपर रख दी इनके, इस तरीके से आपने उस बॉल को यहाँ बीच में रख दिया। ठीक है, अब ये जो बीच का स्पेस बन रहा है, इस स्पेस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये जो बीच का गैप आ रहा है, ये वाला गैप, इस गैप की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। जैसे अगर आपके पास में कोई क्ले है ना, आपने क्ले को बीच में रख के 3 बॉल के बीच में रखे, ऊपर से एक बॉल को और दबाया, ऊपर से प्रेस किया, तो बीच वाला जो वॉइड है उसकी शेप बन जाएगी अंदर। उस शेप को अगर हम देखेंगे तो वो होती है टेट्राहेड्रल जैसी। टेट्राहेड्रल जैसी कैसी होती है, देखो इस टाइप की होती है, वो ऐसी अंदर बनेगी शेप, ये होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को यहाँ से देखें, ऊपर से, हमारी आई से ऊपर से देखें, तो वो कुछ हमें नज़र आएगी ऐसे। उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रोन। क्या बोलते हैं उसको, टेट्राहेड्रोन बोलते हैं। ये लाइन यहाँ आ रही है, ये वाली। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, वो कौन सा है, ये रहा। और बाकी इसमें ये जो 3 आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, वो तीनों ये रहे। हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को, इसको हम देख रहे हैं ऊपर से, तो वो ऐसी नज़र आती है फिर टेट्राहेड्रोन। तो वॉइड अगर टेट्राहेड्रल शेप का है तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो इसमें क्या होता है, दीज वॉइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 6 स्फीयर्स इफ 3 spheres of second layer are the so placed on tetragonally whole form from the other first layer। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसको। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और ये हमारे पास में है थर्ड स्फीयर, ये 3 है हमारे पास में। अब हमने इन तीनों के बीच में, 2 के बीच में एक बॉल फिर से रखी, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब ये बॉल, पहले ये जो बॉल रखी हुई थी एटम्स से वो नीचे फर्स्ट लेयर के अंदर थे। अब सेकंड लेयर पर जो एटम्स आएंगे वो इस तरीके से आ रहे हैं। देखो ये आ रहा है आपके फर्स्ट, ये आ रहा है सेकंड और ये आ रहा है थर्ड।
तीन के ऊपर तीन प्रेजेंट है ना, वो ब्लू वाली फर्स्ट लेयर है और रेड वाली सेकंड लेयर जो ऊपर प्रेजेंट है। अब देखो बीच में जो ये बन रहा है ना, इसमें स्पेस जो आ रहा है बीच में, वो उसकी अगर हम बात करें, बीच में जो स्पेस आ रहा है उसको मैं किस कलर से लेता हूँ, ये देखो ये वाला जो स्पेस है ना बीच में, ये होता है ऑक्टाहेड्रल शेप का। कैसा ये होता है? ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इन 6 बॉल के बीच में क्ले फंसाएं तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप का बनेगा। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है? इस तरीके से होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, ऐसा बनेगा। इसको भी अगर हम ऊपर से देखें तो वो बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन, ये ऐसा दिखेगा ऑक्टाहेड्रॉन। सो ऑन द बेसिस ऑफ voids there are two types of structure, there are two types of voids, tetrahedral voids और octahedral voids। अब देखिए यहाँ एक बात लिखी हुई है, for each sphere there are two tetrahedral voids and one octahedral void। किसी भी एक स्फीयर के लिए उसके अंदर दो दो तो टेट्राहेड्रल आ सकते हैं और एक आ सकता है ऑक्टाहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर n। टोटल हो जाते हैं इसके अंदर 3n वॉइड्स, 3n वॉइड्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल का मतलब n है ना, तो n का मतलब पूरे सारे कवर होते हैं उसके अंदर। लेकिन टेट्राहेड्रल का मतलब 8/2 हो गया, है ना, 8/4 हो गया टेट्राहेड्रल का मतलब, तो 8/4 का मतलब क्या हो गया 2, तो ये होता है 2n। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। क्लियर? ओके।